start in solid state topic, packing of constituent particle. In last lecture we see 1D dimension means one dimensional closed packed particle and two dimensional closed packed particle. In one dimensional closed packed particle coordination number is only 2, and in two dimensional packing divided into two types. First is square closed packing and second is hexagonal closed packing. So in square closed packing coordination number is 4 and hexagonal closed packing coordination number is 6. So this is third type, three dimensional packing. This is third type, three dimensional closed packed particles. So in three dimensional closed packing divided in three types. So first is A means 6 times A. This is a 6 times A means AA 3D square packing. AA 3-dimensional square packing. And in second type AB type, 3-dimensional AB 3-dimensional hexagonal closed packed particles. And short form we written like HCP. So next, third type is ABC type arrangement, 3D closed particles. So this denoted by FCC or CCP. FCC means face center cubic crystal or CCC means cubic center particles. So in three-dimensional third type ABC 3-dimensional closed packed particle in face center cubic structure or cubic closed particle. Face center cubic particle or cubic closed particle. And in this type we also written in hexagonal closed packed particle. So first we see a first type means AA type 3D square closed packed particle. So in this structure a different means same pair are strongly attached to each other in three-dimensional structure. So this structure, first layer we denoted as A, second layer also denoted as A, third layer also denoted as A, and fourth layer also denoted as A. So in this direction is x-axis and in this direction is y-axis. And upper part means in this type, so it is called as y-direction. In this type structure, so it is called as y-direction. But in three-dimensional, we consider a container or a box. So in this first layer is filler, but different laddu are attached in upper part also. So यहाँ पे मैं 3-dimensional दिखा नहीं सकती, तो मैं ऐसे ही मतलब पहले हमने फुल कवर कर लिए, मतलब वो कंटेनर में लड्डू फिलअप कर दिए, फिर हमें क्या करना है उसके ऊपर भी हो गए ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ. तो ये मतलब 3-dimensional में यहाँ पे नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिए. मतलब ये बड़े वाले सर्कल वो नीचे है कंटेनर और छोटे वाले लड्डू ऊपर है. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने मिडिल वाला सर्कल कंसीडर कर दिया, ये वाला मैंने सर्कल कंसीडर कर दिया, ये वाला
तो इसके ऊपर ये वाला मतलब ये कितने एटम को अटैच है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड, यहाँ पे ये थर्ड, यहाँ पे ये फोर्थ, मतलब ये अटैचमेंट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल है, मतलब नीचे भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। मतलब लड्डू में लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो मैंने मिडल वाला कंसीडर कर लिया। तो कितने आइटम हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। फॉर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फॉर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब यहाँ पे 4 आर टचिंग, 4 atom are touched to each other, 4 atom are touched, and 1 atom upper side and 1 atom lower side. So coordination become 3D square packing. So coordination number is 6. So coordination number is 6. So in this means in container first layer is below layer, next upper layer is attached means stacked to each other in a row or column formation, and next third level is attached. So मैंने यहाँ पे 3 dimensional just like डायग्राम ऐसे दिखा दिया है, तो मैंने यहाँ पे पर मतलब लिख दिया है 4 आइटम टच टू ईच अदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके नीचे भी होगा और ऊपर भी। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर 3D स्क्वायर पैकिंग में कितना होगा, 6। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, और इसे ही क्या कहते हैं, स्क्वायर पैकिंग कहते हैं, इसे ही स्क्वायर पैकिंग। तो यहाँ पे अभी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और पार्टिकल, और यहाँ पे एबीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पार्टिकल और फेस सेंटर क्यूबिक पार्टिकल, एंड नेक्स्ट सीसीपी मींस क्यूबिक क्लोज पार्टिकल, फेस सेंटर क्लोज पार्टिकल और क्यूबिक क्लोज पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं एफसीसी और सीसीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे अभी ए डायमेंशनल मतलब जो ये है ए टाइप है, ये ए टाइप और ये ए टाइप, ये कौन सी कर रही है, 2 डायमेंशनल पैकिंग। यहाँ पे भी क्या है, 2 डायमेंशनल पैकिंग, मतलब ये ए जो एटम है वो कौन सी फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो हमें पता चल रहा है ए एटम कौन सी पैकिंग कर रहा है, दिखा रहा है 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो यहाँ पे मैं अभी ये मतलब ऐसे डायग्राम दिखाती हूँ, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे मैं स्पेस रख देती हूँ, तो ये बीच में रख दिया लड्डू। फिर क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब मैंने ऐसे ही, मतलब ये क्लोजली अटैच है, लेकिन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रख दिया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे अभी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मिडल वाला है, तो इसमें जो बी टाइप होगा, जो बी टाइप है ये वाला, ये कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस, मतलब क्या हो गए, ये 3 आइटम मैंने ऐसे कंसीडर कर दिए। तो ये 3 आइटम मींस दिस 3 आइटम आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर से देख लिया तो कितना, यहाँ पे नीचे वाला जो लड्डू है वो दिख जाएगा यहाँ से। तो ये जो होल है, होल मतलब क्या, वॉइड, ये जो होल है मतलब एम्प्टी स्पेस है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे होल क्रिएट, मतलब इसे ही हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये क्या, मैंने ये शेडेड पोर्शन, तो ये जो क्रिएट हो रहा है ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बी टाइप का कौन सा दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कौन सा फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी। कितने आइटम है, जो 3 मतलब 3 आइटम्स आर जॉइंट टू ईच अदर, एंड ऊपर से देख लिए तो ये वाला नीचे है, तो यहाँ पे कितने आइटम्स है, टोटल 4 आइटम्स, 4 आइटम्स मींस 3 आइटम्स आर जॉइंट टू ईच अदर। यहाँ पे मैं ठीक से लिख देती हूँ,
3 atoms are joined to each other. And one below, and one atom is below these 3 atoms, so it is formed a some hole. It is formed a some hole, so this hole is known as tetrahedral void. So this hole is known as tetrahedral void. So HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक पार्टिकल जो है वो कौन सा वॉइड फॉर्मेशन कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और कितने एटम्स पार्टिसिपेट है, टोटल 3 एटम है। 3 एटम से हमने ऊपर से देख लिया तो नीचे वाला एटम दिख रहा है और एम्प्टी स्पेस क्रिएट है, तो उसमें ये कौन सा हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी यहाँ पे में ये जो ये बीच में वाली होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। यहाँ पे भी क्या होगा 3 है, तो यहाँ पे बीच में दिखने वाला है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। अभी यहाँ पे भी क्या 3 एटम है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे मतलब 3 है। तो यहाँ पे ये बीच में वाले है ना, मैं यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे दिखा सकती हूँ। अभी समझ में आ गया ये वॉइड कैसे हो गए। ये जो 3 ऊपर थे और ये टी वाला मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टी को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये वाला है जो नीचे है हमारा, ये क्रिएट कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी यहाँ पे 3D क्लोज पैक पार्टिकल मतलब क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक पार्टिकल, ये क्या है CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैक पार्टिकल, तो यहाँ पे मैंने CCP लग दिया। तो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्म करते हैं CCP और HCC मतलब कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड क्रिएट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड मतलब ओम एम्प्टी स्पेस। और कितने एटम्स पार्टिसिपेट है, 6 एटम। 6 एटम are participate in octahedral void and form hole, means in this atom 6 atom। तो ये कैसे octahedral void क्रिएट कर रहा है, ये वाले 3 है और इसके ऊपर जो है तो मतलब यहाँ पे ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे ये एक है, मतलब नीचे वाले कितने एटम है 3 और ऊपर वाले कितना एटम है 3। तो ये मतलब मैंने ठीक से नहीं बनाया थी, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये 3 एटम। और उसके ऊपर मतलब यहाँ पे मैं बना देती हूँ, तो ये बीच में वाला जो होल क्रिएट हो रहा है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन उसके लिए कितने एटम्स कंबाइंड है, मतलब 6 एटम। 3 एटम्स आर बिलो द सरफेस और 3 एटम उस लड्डू के ऊपर है, मतलब उसमें जो होल क्रिएट हो रहा है ये बीच में वाला, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर के 3 है और ये ब्लैक कलर के, तो ये बीच में वाला ये वो है, यहाँ पे ये वो है और यहाँ पे ये वो फॉर्मेशन है, मतलब जहाँ पे 6 होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, ओ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये ओ मतलब मैं ऐसे फॉर्म करा देती हूँ और इसको शेडिंग में दिखा देती हूँ ये। तो ये समझ में आ गया। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब कितने, 3 एटम्स नीचे 3 एटम ऊपर और जो बीच में वाली स्पेस, यहाँ पे मैंने मतलब डिस्टिंक्टली अपार्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लेकिन तुम्हें जब तुम बुक में कोई भी देखोगे एनसीईआरटी नहीं तो हमारी 12th की महाराष्ट्र स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक देख लोगे तो यहाँ पे मतलब कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेस तुम्हें समझने के लिए इतनी रखी थी, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था ये कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है, कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट। अभी इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना है। अभी ये ठीक से क्लियर हो गया, तो अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितने एटम है, मतलब एक को कितने एटम टच कर रहा है, टोटल कोई भी हमने मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तो उसको कितने हेक्सागोनल में हमने कितने देख लिए थे, मतलब ये एटम
एटम को कितने टच कर रहे हैं, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ वाला, ये दो, मतलब ये मिडल वालों को कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड मैंने लास्ट डायग्राम में 2 डायमेंशनल में दिखा दिया था। तो ये कितने एटम है, 6। तो ये इस फॉर्मेशन में होगा डायग्राम में, तो इसके कितने 6 एटम, मीन्स फर्स्ट कितने 6 एटम, मिडल को कितने स्पेयर कर रहे हैं, 6 atoms are touched to each other and 3 above the surface and 3 below the surface. So 6 plus 3 9, 9 plus 3 12. So coordination number for 3D HCP means hexagonal close packed particle and 3D FCC or CCP coordination number is 12. Means 6 atom touch to each other, 3 above the surface means above the surface and 3 below the surface. So total coordination number is 12 for 3D HCP means hexagonal close packed structure or 3D cubic close packed structure. So I hope you understand 3D close packed structure. But I tell you this is deleted syllabus means not for the marks, not for the marks. बट यहाँ पे मैंने ऐसे ही मतलब एंट्रेंस के लिए भी सीबीएसई ने कट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब लिंक होता है अनदर पोर्शन, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड 3D क्लोज पैक्ड पार्टिकल. I hope you understand 3D close packed particle. If you have any queries, so ask me. Thank you, student.